Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, so let's start with our new topic. Yesterday we have started with the HTML tables. With a basic table we have created. So we just revise the points seen yesterday and we'll check out the new different tags that we can use with the tables. So these are the different tags. Apart from tags, there are number of different attributes also. So some tags are like table, th, tr, td, caption. So these 5 tags we have seen yesterday. Then next, some tags are like call group, that is column group. Call means columns. T head means table head, table body, and table fit. We have seen that in a HTML table, the table structure is like that. In a horizontal, it is called as the tr. Then in first row, every cell we can put it as a th if you want to put it as a table heading. And inside this, we can, whatever the data we are adding, we call it as a td tag. We have seen a simple table yesterday where we are put some like 3 columns, some caption and the values in the table. So for that, we have seen like for the code, in a table you can use a border. If you don't use the border attribute, the table will be without border. So in a table tag you can put a border, you can give a size of border, it can be 1 2 3 4 5 likewise. Then next is a width indicate how much width of your web page it is going to be used. If you put it as 100%, तो टेबल का पूरा स्पेस जो है, टेबल क्या करेगा, पूरे वेब पेज जो है हॉरिजॉन्टली उसको 100% यूटिलाइज करेगा. This we have not seen yesterday. Today I will show you what is the mean by cell spacing. Then we have seen whenever you want to add any of the rows, start with tr, end with tr, and how many columns. If you want 3 columns and they are of heading, you have to use th and end with th. Whenever you are adding a data in between tr tag, you have to start with td and end with the slash td. This is very simple example. Then we have seen how to add a color, background color to any of the row. Suppose I want to add a color to the first row, so you can put directly the bg color tag in that particular row. जैसे tr tag, जिस row के पीछे आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए, डायरेक्टली टीआर के बाद आप बीजी कलर एंड जो भी कलर आपको प्रोवाइड करना है, यू कैन पुट दैट कलर. नाउ द नेक्स्ट दैट वी हैव नॉट सीन यस्टरडे, लाइक इफ आई वांट कि अगर टेबल में मैं कितने भी रोज ऐड करूं तो एवरी अल्टरनेट रो को ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, कलर प्रोवाइड होना चाहिए. सो दैट कैन बी आइदर अ ऑड रो और दैट कैन बी अ इवन रो. तो जैसे अगर आप देखोगे, दिस इज अ रो 1, दिस इज रो 2. तो रो 2 को मैंने बैकग्राउंड में कलर दिया है, देन 3 को नहीं दिया है, 4 को दिया है, 5 को नहीं दिया है, रो नंबर 6 को दिया है. सो एवरी इवन रो इज हैविंग सम कलर. सो दैट टाइम, एंड अगर मैं फ्यूचर में कितने भी रो ऐड करूं तो ऑटोमेटिकली एवरी इवन रो को कलर प्रोवाइड होना चाहिए. ओके, सो फॉर दैट वेरी सिंपल थिंग, हियर we have added a style tag in a head. So style tag is provided by CSS, that is cascading style sheet. जब आपको कोई भी फीचर या कोई भी एट्रीब्यूट जो है ये पूरे वेब पेज में जहां जहां पे भी वो टैग आ रहा है, वो हर टैग के लिए ऑटोमेटिक अप्लाई होना चाहिए. सो दैट टाइम वी आर पुटिंग दैट कोड इनसाइड द हेड टैग यूजिंग द स्टाइल टैग. तो जब भी आपको स्टाइल ये कीवर्ड दिखेगा, आप समझ लो ये CSS का कोड है जो हमने HTML के साथ मर्ज किया, दैट इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट. नाउ एग्जैक्टली व्हाट दिस इज, देखो ये सब क्या है, दिस टैग्स आर TR टैग्स. ओके, ये हर एक रो है. तो रो के लिए हमने देखा टेबल में वी आर यूजिंग अ TR टैग. तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि पूरे टेबल में, पूरे बॉडी के कोड में जहां पे भी आपको TR ये टैग दिखेगा, सो इट इंडिकेट द टैग नेम कोलन. तो आपको क्या चीज उसको प्रोवाइड करना है. लेकिन मैंने बोला कि TR में हर एक रो के लिए नहीं, हर इवन रो के लिए हमको कुछ चीज अप्लाई करना है. ओके, बट इवन कितने रो तक के लिए, nth मतलब
जितने भी रोज ऐड होंगे टेबल में अभी या इन फ्यूचर, तो हर रो के लिए अगर वो इवन रो है तो मुझे क्या प्रोवाइड करना है, that the background color should be sky blue, any color that you want. Okay, so we will do that code. जो हमारा yesterday का कोड था उसमें हम ये चीजें कंप्लीट करते हैं. अभी यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, जो फर्स्ट रो के लिए मैंने कलर प्रोवाइड किया था, so this is a simple example. Okay, जो हमने कल देखा था. So first in this example border के बाद हम लोग यहाँ पे width, how to use width वो मैं बताती हूँ. It has to give in a percentage. अब अगर मैं इसको 100% कर देती हूँ, okay, and I am refreshing this, so the size of table is span to the whole web page. यानी पूरा 100% का जो width है उसने acquire किया. I am not talking about the height, I am talking about the horizontal. Okay, width उसने पूरा acquire कर लिया. So this tag is width. अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया like only the 20% एंड रिफ्रेश किया, तो इसने उसको क्या कर दिया, स्क्विज कर दिया 20% के लिए. सो लाइकवाइज यू कैन गिव द विड्थ, हाउ मच स्पेस यू वांट टू अक्वायर, यू कैन यूज अ 50%, एनीथिंग. आफ्टर दैट इफ यू सी, ये दो सेल है, इन दो सेल के बीच में मैंने कल बताया था कि ये लाइन है जो बीच में क्या हो रहा है, ये स्पेस ऐड हो रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज द सेल स्पेसिंग टैग और एट्रीब्यूट. तो ये टेबल टैग के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया स्पेसिंग. ओके, और सेल स्पेसिंग में मैंने यहाँ पे 0 वैल्यू पुट कर दिया है. सो जैसे मैंने 0 पुट किया, यू कैन सी कि दो सेल के बीच में जो स्पेस था वो निकल गया क्योंकि मैंने उसकी वैल्यू 0 कर दी. अब अगर यहाँ पे जाके मैंने इसकी वैल्यू 10 कर दी है, एंड इफ आई एम मेकिंग रिफ्रेश, यू कैन अंडरस्टैंड बिटवीन दीज टू सेल, ये जो दो सेल, इन दो सेल के बीच में का स्पेस क्या हो गया, 10 पॉइंट्स का हो गया, इंक्रीज हो गया है. सो डिपेंड ऑन हाउ मेनी स्पेसिंग यू आर प्रोवाइडिंग टू द सेल, हर दो सेल के बीच में उतना स्पेस आ जाता है. आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो यूज सेल पैडिंग एट्रीब्यूट. ओके, सेल पैडिंग यूज किया मैंने और इसके बीच में मैंने वैल्यू डाल दिया है अब यहाँ पे 5. ओके, और अब मैंने इसको रिफ्रेश किया, जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग. तो ये सेल, इनसाइड सेल जो है इसकी हाइट इंक्रीज हो गई. सेल स्पेसिंग में दो सेल के बीच में का स्पेस डिफाइन होता है. सेल पैडिंग में वो सेल की जो हाइट है वो कितना चाहिए आपको, कितना उसको स्पैन करना है, कितना बढ़ाना है, वो बताया जाता है. अगर हमने यहाँ पे सेल्स पैडिंग में 5 के बजाय हमने डाल दिया 10, सो द हाइट ऑफ सेल इज नाउ अगेन इंक्रीज. तो यहाँ पे इनसाइड सेल की पैडिंग की साइज टॉप एंड बॉटम में कितना इंक्रीज करना है वो हम बताते हैं. सेल स्पेसिंग में दो सेल के बीच में का साइज जो है वो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बताते हैं. सपोज मैंने इसको 0 कर दिया एंड आई हैव पुट इट जस्ट सिंपल 2 हियर. ओके, सो वेरी सिंपल, दिस इज एन सिंपल टेबल वी हैव एडेड. नाउ व्हाट आई वांट कि हर एक रो, अल्टरनेट रो जो है उसको मुझे कलर प्रोवाइड करना है. तो फर्स्ट रो को नहीं चाहिए, लेकिन ये सेकंड आकाश वाली रो जो है उसको बैकग्राउंड कलर चाहिए. थर्ड रो को नहीं चाहिए, फोर्थ रो को चाहिए. ओके, फिफ्थ को नहीं चाहिए. अगेन अगर मैंने सिक्स्थ रो ऐड किया तो उसमें ऑटोमेटिकली कलर ऐड होना चाहिए. सो इसमें एक बेसिक चीज क्या है, यू कैन पुट अ कलर टैग इनसाइड दैट टीआर. जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट टीआर ये है, मुझे इसमें कलर नहीं चाहिए. सेकंड टीआर के लिए मैं डाल दिया लाइक स्टाइल इक्वल टू color colon, suppose I have put it gray here. Okay, now same I have copied this and I don't want it in a third row but I want it in a fourth row. Again I don't want it in a fifth row. यहाँ पे गई, इसको मैंने सॉरी बीजी कलर यूज करना था हमको because I want to provide a background color. Okay, बीजी कलर यूज किया मैंने एंड रिफ्रेश किया. सो अल्टरनेट रो को क्या हो गया, कलर प्रोवाइड हो गया. नाउ जस्ट इमेजिन आई हैव एडेड अगेन वन मोर रो. ओके, आफ्टर दिस
Okay, and when I am refreshing this, नया रो ऐड हुआ लेकिन automatically background color नहीं आया. What again I have to do? Again I have to remember that I have to add this code and put inside here. Then and then it is going to work. Okay, तो आप कितनी बार करोगे? अगर आपके टेबल में 100 rows है, suppose I am just check out that T roll call list is having 83 students. Okay, or including this my header tag, so there are total 84 rows in the T roll call list. तो मुझे वो टैग जो है, जो भी एट्रीब्यूट है कलर का, वो कितनी बार ऐड करना पड़ेगा? बहुत बार ऐड करना पड़ेगा. सो यू वांट टू रिपीट दैट कोड मेनी ऑफ द टाइम. सो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग दैट कोड, व्हाट वी कैन डू, वी कैन पुट दिस स्टाइल टैग, ओके, इन द हेड. ओके, सो यहां से मैंने क्या किया, ये वाला कोड जो है इसको रिमूव कर दिया. ओके, so I'm not going to bother how many rows I am adding, and for every row I have to remember and put the color, background color tag. हम लोग ये चीज करने वाले हैं CSS से. CSS यूज होता है जब आपको कोई चीज रिपीटेडली करनी है, कोई स्टाइल जो है आपको रिपीटेडली ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड करना है. ओके, सो व्हाट वी हैव डन हियर, वी हैव एडेड द स्टाइल टैग, एंडेड द स्टाइल टैग. ओके, इसमें हमने बोला कि जो भी हम ये प्रॉपर्टी है ये प्रोवाइड कर रहे हैं CSS की, ये कौन सा टैग के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं? TR टैग के लिए. बट हर TR टैग के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं क्या? नो, ओनली इवन TR टैग के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं. और जितनी भी बार न्यू रो ऐड होगी, हर न्यू रो में वो चेक करेगा इज इट ए इवन रो और ऑड रो. इवन है तो उसके बैकग्राउंड में हम ये कलर दे देंगे. देखो, अगर बैकग्राउंड कलर की ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिखती हूँ, तो यहाँ पे हम उसको कैसे लिखते हैं? BG कलर एंड सिंपल इक्वल करते हैं, और जो भी कलर आपको प्रोवाइड करना है उस कलर का नाम हम यहाँ पे डालते हैं. ओके, बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ HTML. ओके, HTML में हर प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट जो आप टैग के साथ लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉपर्टी का नाम इक्वल टू एंड उसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं. ओके, सो ये चीजें हम लिखी जाती है. लेकिन जब यही चीज हमको CSS में पुट करनी है, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी का नाम HTML में और CS में थोड़ा चेंज है. जैसे यहाँ पे BG कलर है तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है. यहाँ पे अगर हम इक्वल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम यूज करते हैं कोलन. यहाँ पे वैल्यू देने के बाद हमने सेमीकोलन नहीं दिया. यहाँ पे हर वैल्यू के बाद हमको क्या करना है, क्या प्रोवाइड करना है? सेमीकोलन प्रोवाइड करना है. सो सिंपल वी हैव यूज दिस. अब यहाँ पे जाके जो हमारा कोड है उसको हम लोग रन करेंगे. सो यहाँ पे क्या हो गया, ऑटोमेटिकली बाय जस्ट यूजिंग अ सिंगल कोड, यहाँ पे हर इवन रो को वो कलर क्या हो गया, प्रोवाइड हो गया. अब मुझे लग रहा है इवन रो को नहीं देना था, ऑड रो को देना था. तो अब मुझे हर कोड में जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है अगर आप HTML में दोगे. इन CSS आई जस्ट हैव टू पुट वन चेंज हियर. ओके, एंड यू विल फाइंड कि अब ये कलर क्या हो गया, आपके ऑड रोज को प्रोवाइड हो गया. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द यूज ऑफ CSS. ओके, सो दिस इज हाउ we can provide the color to the rows. The next example, instead of now rows, I want to provide color to the columns. Okay, TR tag तो है हमारे पास, तो TR tag से आप रो बाय रो कलर दे सकते हो, लेकिन मुझे रो में नहीं चाहिए. मुझे पर्टिकुलर कॉलम को हाईलाइट करना है, पर्टिकुलर कॉलम को कलर प्रोवाइड करना है. ओके, सो फॉर दैट वी डोंट हैव एनी लाइक TR का टैग है, लेकिन ऐसा TC कोई टैग नहीं है जो कॉलम को आइडेंटिफाई करता है. ओके, सो फॉर दैट दे हैव गिवन अस अ टैग व्हिच इज कॉल्ड एज द COL, दैट इज कॉलम. ओके, और कॉलम का आपको ग्रुप बनाना पड़ता है. जैसे ये हो गया फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. तो हर रो का जो फर्स्ट कॉलम है, इन सबका हमको क्या बनाना है, वी हैव टू मेक द ग्रुप ऑफ दिस. सो फॉर दैट वी आर यूजिंग अ टैग व्हिच इज कॉल्ड एज द कॉल ग्रुप टैग एंड एंड ऑफ कॉल ग्रुप टैग. ये टेबल के बाद तुरंत लिखते हैं फर्स्ट रो स्टार्ट होने के पहले. अब यहाँ पे अगर हमने ये बताया नहीं कि कौन से कॉलम के लिए हम लोग इसको यूज कर रहे, तो बाय डिफॉल्ट जो भी आप ये प्रॉपर्टी प्रोवाइड करोगे ये फर्स्ट कॉलम के लिए क्या हो जाएगी, प्रोवाइड हो जाएगी. सो इन कॉल ग्रुप यू हैव टू यूज अ COL. तो दो टैग साथ में चलते, कॉलम ग्रुप एंड कॉलम. सो फर्स्ट कॉलम ग्रुप से हम कॉलम के ग्रुप बनाते हैं,
और ग्रुप बनाने के बाद हम बताते कि फर्स्ट कॉलम है उसको क्या प्रॉपर्टी देना है, सेकेंड कॉलम को क्या देना है, थर्ड कॉलम को आपको क्या प्रॉपर्टी है जो प्रोवाइड करना है। ओके, सो वी विल डू दिस। अब मैं इसको निकाल देती हूँ यहाँ से, सपोज स्टाइल टैग को मैंने यहाँ से निकाल दिया। ओके, और सिंपल जो हमारा आउटपुट है अभी सिंपल हो गया है। नाउ हियर आई एम पुटिंग कॉलम ग्रुप। ओके, कॉलम का ग्रुप बना दिया, उसमें कॉलम। ओके, और कॉलम को आपको क्या प्रॉपर्टी प्रोवाइड करना है वो हम देंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम सिंपल पहले बीजी कलर यूज करते हो। ओके, तो बीजी कलर से होता है क्या, दैट विल सी बीजी कलर इक्वल टू ग्रीन, एंड हमने इसको रन किया तो सिंपल बाय बीजी कलर हमने क्या किया, जो भी कॉलम से उसको ग्रुप कर दिया, और उस ग्रुप में फर्स्ट बाय डिफॉल्ट फर्स्ट कॉलम को क्या हो गया, कलर प्रोवाइड हो गया। नो, आई डोंट वांट द कलर टू द फर्स्ट कॉलम, आई वांट द कलर टू द सेकंड कॉलम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये प्रॉपर्टी निकाल दो। ओके, सिंपल कॉलम लिख दो। हमने बताया कि फर्स्ट कॉलम के लिए हम कुछ नहीं कर रहे, बट फॉर सेकेंड कॉलम वी आर प्रोवाइडिंग दिस। सो फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम अगर हमको थर्ड कॉलम के लिए लिखना है, ओके, अगेन आई हैव टू पुट अ सिंपल कॉलम। तो ये इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट कॉलम का ग्रुप जिसमें हमने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया है, सेकेंड कॉलम का ग्रुप जिसमें कुछ प्रोवाइड नहीं किया है, थर्ड कॉलम का ग्रुप जिसमें हमने क्या किया है, कुछ प्रॉपर्टी जो है वो प्रोवाइड की है। अगर आपको लगता है कि सपोज ये पर्टिकुलर कॉलम जो है, किसी पर्टिकुलर जो कॉलम है उसका अगर फॉन्ट साइज या फिर उसका फोर कलर अगर हम लोग को चेंज करना है, तो सपोज हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर दिया लाइक स्टाइल इक्वल टू कलर कोलन एंड रेट प्रोवाइड किया हमने। ओके, व्हाट हैपेंड? ओके, सो स्टाइल टैग इज नॉट वर्किंग विद दिस। ओके, सो स्टाइल टैग इज नॉट वर्किंग हियर, बट सिंपल आप अगर कलर प्रोवाइड करना चाहते हो पर्टिकुलर कॉलम्स को, सो यू कैन यूज दिस column span. So this is the next example that you can use. Now next, suppose I want to provide the four color, but four color ऐसा मुझे चाहिए कि जो टेबल है उसका फर्स्ट रो जो है, जो हेडिंग है उसको डिफरेंट कलर आना चाहिए, आपका जो फुटर है उस फुटर को डिफरेंट कलर आना चाहिए, और इन बिटवीन में कितने भी रोज ऐड करूं, कितना भी डेटा ऐड करूं, तो उसका कलर जो है टेक्स्ट का वो डिफरेंट आना चाहिए। सो यू कैन डिवाइड योर टेबल इन अ डिफरेंट 3 वेज, जिसमें आप बताते हो कि फर्स्ट रो क्या है, आपकी हेडिंग है, लास्ट के 1 रो और 2 रो आपको डिपेंड ऑन यू कितने रोज आपको एज अ फुटर में डालने। सपोज मैंने डाल दिया कि लास्ट की जो रो रहेगी वो फुटर में रहेगी, और इन बिटवीन जितने भी रोज है वो क्या हो जाएंगे, बॉडी को इंडिकेट करते। सो देयर आर 3 टैग्स, टी हेड दैट इज स्टेबल हेड, टी फुट दैट इज स्टेबल फुट, एंड टी बॉडी मीन्स स्टेबल बॉडी। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले, अभी कलर इस वे में प्रोवाइड करेंगे। सो वेरी सिंपल, जैसे टेबल हम लोगों ने स्टार्ट किया, फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट रो जिसमें हमने टीएच टैग, मतलब फर्स्ट रो में हमने हेडिंग जहाँ पे प्रोवाइड किया है, उस हेडिंग टैग के रो के पहले और एंड में मैंने ऐड कर दिया टी हेड, एंड में ऐड किया टी हेड। तो ये बताया कि फर्स्ट रो जो है ये हेड टैग है, और इस हेड टैग को हमको जो कलर प्रोवाइड करना है वो हमने डाल दिया ग्रीन कलर। तो फर्स्ट रो में जितने भी हेडिंग्स होंगे उसको कलर आ जाएगा ग्रीन। देन नेक्स्ट हमने यहाँ पे जो लास्ट रो है, लास्ट रो के टीआर टैग के पहले एंड टीआर टैग के बाद में आई हैव पुटेड द टी फुट टैग। मैंने बता दिया है फुटर टैग है, फुटर टेबल है, टेबल की लास्ट रो है, and I have given that in the last row I want a color of a text should be red, and in between आप कितने भी रोज ऐड कर दो। ओके, हर एक रो के मतलब पूरे सब रोज के पहले और सब रोज के एंड में, ओके, खाली वन टाइम आई हैव पुटेड इट एज अ टी बॉडी स्टार्टिंग एंड टी बॉडी एंडिंग। और मैंने बताया कि इसके बीच में जितने भी रोज ऐड हो, हर रो के लिए जो टेक्स्ट का कलर है वो प्रोवाइड होना चाहिए लाइक दिस। सो लाइक दिस वी विल यूज दिस एग्जाम्पल। ओके, यहाँ से भी हमने कॉलम स्पैन मैंने हटा दिया है, कॉलम ग्रुप, and we are using T head,
तो यहाँ पे सपोज फर्स्ट रो जो है हमारा, ये मैं बता रही हूँ कि ये टेबल का टी हेड टैग है, और ये रो जहाँ पे भी एंड होगी यहाँ पे हमारा टेबल का जो हेड है वो एंड हो रहा है। ओके, और इसको मैंने बताया कि फर्स्ट रो जो है उसके लिए जो मुझे कलर प्रोवाइड करना है, स्टाइल इक्वल टू कलर कोलन, जो भी आपको प्रोवाइड करना है, जस्ट आई हैव गिवन द ग्रीन कलर। ओके, लाइकवाइज इसके बाद जो लास्ट रो है, सपोज हम लोग एक रो ऐड करते हैं इसमें, हेडिंग फुटर के लिए लाइक हमने डाल दिया कि लाइक टोटल 5 कॉन्टैक्ट, यहाँ पे हमने डाल दिया टोटल 5 नेम्स जो भी आपको फुटर में चाहिए, एंड टोटल 5 स्टूडेंट्स। ओके, हम लोगों ने ऐसा कुछ प्रोवाइड किया। सो लास्ट रो हमने ऐसा वाला ऐड कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं कि जो फुटर टैग है उस फुटर टैग के टीआर टैग के पहले आई हैव यूज्ड टी फुट टैग, एंड ये जो एंड है ये हमने इस टीआर के बाद कर दिया। ये हमने बताया ये पूरी रो फुटर में आ रही है, और यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया स्टाइल इक्वल टू color colon, and suppose I have used blue color. Okay, and in between इसके बीच में जितने भी रोज आ रहे हैं ये सब उस टेबल की बॉडी मतलब एक्चुअल डेटा को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे यूज कर दिया टी बॉडी टैग, and we have ended the t body tag before the last row. Okay, and in t body tag we have given here like style colon color equal to like suppose we have used yellow. So when I am running this, okay, yellow color is not showing properly. Okay, we have used like suppose red. So here it indicates कि फर्स्ट रो जो है ये हमने हेडिंग है, तो हेडिंग एक ही बार आया, इसके लिए उसका कलर ग्रीन कर दिया। लास्ट जो टाइट फुटर है उस टेक्स्ट के कलर डिफरेंट कर दिया, और उसके बीच में जितने भी रोज ऐड करोगे आप लोग उन सबके टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा, you will put it as a red. So this is use of like T head, T body and T foot tag. Now next, which is very important. So this is an example of your like when you want a table of where like your class timetable. Okay, so where we want in a first row should be your days, in a first column the timing, and in some of the row I don't want a column to be divided. Okay, यहाँ पे जैसे 4 कॉलम्स है, लेकिन नीचे हमने क्या किया, चारों कॉलम्स को we have merged it, कंबाइन कर दिया, एंड कंबाइन करने का हमने कुछ तो उसको कलर प्रोवाइड किया और कुछ टेक्स्ट जो है उसके सेंटर में प्रोवाइड कर दिया। अगेन इन अ नेक्स्ट रो यू कैन सी यहाँ पे अगेन 2 rows आर देयर, बट फॉर ट्यूसडे देयर इज सपोज प्रैक्टिकल बैच ऑफ 2 hour, तो हमने ये 2 rows को क्या कर दिया, कंबाइन किया। यहाँ पे हमने 4 कॉलम्स को कंबाइन किया। हियर वी हैव कंबाइंड और मर्ज द कॉलम्स, हियर वी हैव मर्ज द रोज, अगेन हियर वी हैव मर्ज द 2 rows। सो यहाँ पे हमने 2 rows को मर्ज किया, यहाँ पे हमने 4 कॉलम्स को मर्ज किया है। सो फॉर दैट यू कैन यूज अ like 2 attributes. One is called as the column span, COL span, call span, तो जिसमें हम बताते हैं कि ये जो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम कितने जगह पे स्पैन हो रहा है, ये कॉलम का एंड डायरेक्टली यहाँ पे हो रहा है, तो ये कॉलम स्पैन हो रहा है कितने कितने कॉलम के लिए, 1 2 3 and 4 कॉलम के लिए। सो वी हैव यूज्ड द प्रॉपर्टी कॉल्ड एज द कॉलम स्पैन, एंड यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये फर्स्ट रो से स्टार्ट हो रही है लेकिन ये सेकेंड रो तक जा रही है, पूरे 2 रो को कंबाइन करके हमने बनाया, तो वी कॉल इट एज अ रो स्पैन। और कितने रोज को कंबाइन किया हमने, 2 रोज को कंबाइन किया, सो वी कॉल इट एज अ
रो स्पैन वैल्यू इक्वल टू 2, तो यहाँ पे रो स्पैन इक्वल टू 2, यहाँ पे कॉलम स्पैन इक्वल टू 2, ऐसा हमने क्या किया, कोड किया है। ओके, तो हियर वी हैव पुटेड द कोड, जो कोड है हम लोग इसको पूरा इसमें कॉपी करते हैं सबलाइन में। ओके, सो दिस इज अ टाइम टेबल। अब इसमें यहाँ पे हम लोग खाली क्या करते हैं, टेबल जो है इसका विड्थ में 75% कर देती हूँ, so you can get the value properly, or you can put it as a 100% also, पूरा अगर आपको टेबल पे ये चाहिए तो। ओके, अब यहाँ पे आप देखो ये जो आउटपुट है इसमें हमारा ये कॉलम 4 कॉलम तक स्पैन हो गया और ये 2 रोज तक स्पैन हो गया है। नाउ हाउ टू राइट डाउन सच काइंड ऑफ कोड। फर्स्ट रो बहुत इजी है। फर्स्ट रो में हमको क्या ऐड करना है, टाइम स्लैश डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये सब आएगा आपका टीएच टैग के अंदर। तो दिस इज अ वेरी सिंपल फर्स्ट रो वेयर वी हैव पुटेड द टीएच टैग एंड गिवन द वैल्यू एज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे. Again, second row is very similar, very simple, where in a first column we have given the timing, then DBMS, then maths value, DBMS and DBMS. So these values we have given. तो यहाँ पे आप जाओगे तो सेकेंड रो में हमने टाइमिंग दे दिया, DBMS, मैथ्स, DBMS, DBMS, ओके, सेकेंड रो डन। अगेन थर्ड रो में भी कोई हमने सिंपल वाला वैल्यूज जो है हमने प्रोवाइड किया, जिसमें हर कॉलम के लिए हमने क्या किया है, प्रोवाइड किया है कुछ वैल्यूज को। सो थर्ड रो इज अगेन वेरी सिंपल, where we have given the value for all 5 rows. Now for fourth row में जो फर्स्ट कॉलम है इसमें हमने वैल्यू दिया है, लेकिन सेकेंड कॉलम की जो वैल्यू है ये कंटिन्यूअसली 4 कॉलम तक क्या हो रही है, स्पैन हो रही है। इसको हमको मर्ज करना है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फर्स्ट जो डेटा है वो हमने पुट कर दिया, रो ऐड किया, फर्स्ट टीडी में हमने वैल्यू डाल दिया लाइक 12 एंड 1230 ये वाला। ओके, नेक्स्ट जब टीडी हम लिख रहे हैं हमने बोला कि सेकेंड जो डेटा है, ओके, उसका जो कॉलम है वो कितना स्पैन होना चाहिए, टोटल 4 कॉलम तक स्पैन होना चाहिए। और जो भी डेटा है, सपोज अभी मैं ये निकाल देती हूँ, सिर्फ कॉलम स्पैन बताती हूँ। ओके, सिर्फ हमने क्या किया, अब मैं कॉलम स्पैन भी अगर निकाल देती हूँ, सिंपल मैंने ऐसे लिखा, ओके, कॉलम स्पैन नहीं किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, लंच ब्रेक सिर्फ सेकेंड कॉलम में आ गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये तीनों कॉलम में कुछ भी नहीं है। अब मुझे ये वैल्यू ये चारों कॉलम तक लेके जानी है, तो इसके लिए जहाँ पे ये वैल्यू रहेगी वहां पे जाके मैंने डाल दिया कॉलम स्पैन इक्वल टू टोटल 4, रिफ्रेश किया, ओके, ये सेल जो है ये पूरा 4 कॉलम तक स्पैन हो गया, बट ये वैल्यू जो है ये कहाँ पे लेफ्ट अलाइन है, आई वॉन्ट दैट वैल्यू एट अ सेंटर अलाइन, तो यहाँ पे मैंने जाके कर दिया अलाइन इक्वल टू सेंटर, रिफ्रेश किया, वैल्यू सेंटर में आ गई। बट इस पर्टिकुलर जो रो है, ओके, इतना जो पार्ट है इसको मुझे कुछ कलर प्रोवाइड करना है, तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे जाके क्या कर दिया, बीजी कलर इक्वल टू, और यहाँ पे आपको जो भी कलर आपको प्रोवाइड करना है वो आप क्या कर सकते हो, कलर प्रोवाइड कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज अ कॉलम स्पैन। नेक्स्ट इज अ रो स्पैन। ओके, तो अब रो स्पैन में देखो टोटल रोज कितने हैं मेरे, यहाँ पे 2 रोज है। सेकेंड रो में फर्स्ट वैल्यू दिया है, सेकेंड वैल्यू दिया है, थर्ड वैल्यू भी है, फोर्थ है एंड फिफ्थ है। ओके, सो ये जब फोर्थ रो ऐड करेंगे तो सबका सब डेटा एज इट इज हमारा आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट में टाइम डाल दिया, सेकेंड में मैथ्स डाल दिया, देन थर्ड में हमने, अभी मैं ये रो स्पैन अभी फिलहाल हटा देती हूँ, यहाँ से सिंपल बताती हूँ। ओके, और ये भी हटा देती हूँ, बैच ये भी निकाल देती हूँ, थोड़ा इजी कर लेते हैं हम लोग। ओके, सिंपल किया, यानी ये रो ऐड हो गई, ये कॉल, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू ऐड हो गई। अब लास्ट की जब हम रो ऐड कर रहे हैं, ओके, तो लास्ट के रो में मुझे टाइमिंग्स चाहिए यहाँ पे, तो मैंने नेक्स्ट रो में यहाँ पे टाइमिंग्स पुट कर दिया। ओके,
यहाँ पे मैथ्स के बाद मुझे एडीएस का डेटा चाहिए है, मतलब उसका लेक्चर चाहिए, इसके लिए नेक्स्ट रो में हमने एडीएस ऐड कर दिया। लेकिन अब ये जो है ओके, इस रो में मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये जो डेटा है यही यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंबाइन होना चाहिए। ओके अगेन ये मैथ्स के नीचे एडीएस आना चाहिए, लेकिन इस वैल्यू के नीचे वापस से डीबीएमएस ही क्या होना चाहिए, स्पैन होना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे जाके उसके ऊपर के रो में जाके जहाँ पे डीबीएमएस लिखा है, यहाँ पे हमको लिखना है रो स्पैन इक्वल टू 2। हमने बताया कि ये जो वैल्यू है इस रो में तो रहेगी, बट इसके नेक्स्ट वाले रो में भी क्या होनी चाहिए, स्पैन होनी चाहिए। तो सेव करते हैं एंड ओके, तो ये वाला चीज क्या हो गया, कंबाइन हो गया, और इसकी जो नीचे की वैल्यू थी वो अगले जगह पे चली गई। ओके अब यहाँ पे लास्ट रो में कुछ नहीं है, तो ये वाला वैल्यू मुझे क्या करना है, कंबाइन करना है। तो सेम जहाँ पे वो वैल्यू रहेगी उसके टीडी में जाके हमने यहाँ पे डाल दिया रो स्पैन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, कलर प्रोवाइड हो गया। सो लाइकवाइज यू कैन डू, अगर मुझे पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट है, मतलब ये वाला कोई कॉलम है इतना वाला उसके बैकग्राउंड में कलर देना है, सो आई कैन पुट दैट इन अ टीडी। तो यहाँ पे जाके मैंने अगर डाल दिया तो जैसे टीडी में डाला तो सिर्फ उस टीडी का जो सेल रहेगा वहां पे जाके क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर ऐड हो जाएगा। So I hope row span and column span you have understood. Any question in a table? Students, do you have any question for table tags? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. So I hope you understood. So you can like take a assignment in a, you can give any example for table tag. पूरा डिटेल में जो भी हम लोगों ने सीखा है वो आप लोग you can make it in a assignment. I am checking that a few students are putting the assignments. So this is for your practice. So every student have to do this compulsorily. क्योंकि जब मैं प्रैक्टिकल चेक करना स्टार्ट करूंगी आई एम गोइंग टू चेक कि कितने स्टूडेंट ने वो सब चीजें कंप्लीट की है जो मैंने यहाँ पे डाली हुई है. सो सी दैट योर वर्क शुड नॉट बी लेस. ओके तो आप सिंपल आपके क्लास का टाइम टेबल बना के और उसमें जितने भी हमने चीजें सीखी है वो यूज करो. और यू कैन पुट अ स्मॉल एग्जांपल एंड यू कैन लाइक ऐड देयर. Okay, so here in a chat window, I'm just giving the link of attendance. So just mark your attendance there. So in chat window, I have given the attendance. Again, one example Rahul has asked yesterday, like what is the use of image map? Okay, so I have taken the simple example given by like W3 school itself. तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ और उसका यूज क्या है वो बताती हूँ. ओके, बिकॉज इट रिक्वायर लॉट्स ऑफ इमेज आई हैव टू डाउनलोड. तो यहाँ पे जो रेडीमेड एग्जाम्पल है वो मैंने यहाँ पे लिया है.
तो यहाँ पे क्या किया है, दे हैव यूज द इमेज टैग, यहाँ पे सोर्स दिया है लाइक workplace.jpg, जो अभी आपको इमेज दिख रही है, दिस इज एन workplace.jpg। ओके, अल्टरनेट अगर वो इमेज नहीं दिखती है तो यहाँ पे सिर्फ एक टेक्स्ट आएगा वर्कप्लेस, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट दे हैव यूज्ड यूज मैप, और यहाँ पे एक हैशटैग यूज किया उन्होंने। सो हैशटैग इंडिकेट कि कहीं पे नीचे के कोड में आपको ये वाला जो वर्ड है, वर्ड मैप, ये आपको दिखेगा आइदर बाय विथ आईडी टैग और बाय विथ नेम टैग। तो ये एट्रीब्यूट के साथ जहां पे भी दिखेगा तो उसके साथ हमने क्या किया है, इसको इमेज टैग को लिंक किया है। इमेज की हाइट और विड्थ हमने सेट की है। व्हाट वी वांट कि जैसे मैं ये कंप्यूटर, देखो आपको कर्सर दिख रहा होगा, यहाँ पे जब जा रही हूँ तो कर्सर डिफरेंट एरो में है, जैसे यहाँ पे जाए क्लिकेबल एलिमेंट हो गया है। तो ये पूरा कोऑर्डिनेट जो है, ये हम लोगों ने क्या किया है, सेट किया है कि अगर इस कोऑर्डिनेट पे कहीं पे भी कर्सर आता है तो मैंने जब क्लिक किया तो इसने कौन सी इमेज बताई, कंप्यूटर की इमेज बताई। तो यहाँ पे वी हैव गिवन इन अ वर्ड मैप, वी हैव गिवन शेप रेक्टेंगल। वाई शेप रेक्टेंगल, क्योंकि ये जितना भी शेप है यहाँ पे इस इमेज में कंप्यूटर का दिया है ये रेक्टेंगल है, तो हमने बोला कि रेक्टेंगल है और इसके कोऑर्डिनेट दे दिए। ओके, सो x1 y1 x2 एंड y2, ये पूरा इमेज का कोऑर्डिनेट जो है हमने प्रोवाइड किया। और जैसे इस कोऑर्डिनेट पे क्लिक होगा तो कौन सी इमेज ओपन होनी चाहिए, computer.html की, जो बैकग्राउंड में आपने कहीं तो स्टोर की होगी वो ओपन होनी चाहिए। ऐसे ही हमने बोला सेकेंड रेक्टेंगल, क्योंकि ये फोन जो है इसका ये पूरा एरिया जो है ये रेक्टेंगल है, अगर यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो नेक्स्ट इमेज जो है phone.html की ये ओपन होनी चाहिए। एंड थर्ड इज अ कॉफी। ओके, ये एरिया क्या है, सर्कुलर है, इट्स नॉट अ स्क्वायर। तो सर्कुलर के लिए हम क्या देते हैं, सेंटर पॉइंट देते हैं, दैट इज एक्स एंड वाई एक्सिस ऑफ सेंटर, एंड उसका रेडियस प्रोवाइड करते हैं। सो रेडियस दे दिया, अगर इस पर्टिकुलर एरिया में कहीं पे भी क्लिक होता है तो कौन सा इमेज ओपन होना चाहिए, यहाँ पे coffee.html का इमेज ओपन होना चाहिए। सो दिस इज द यूज ऑफ योर यूज मैप टैग। अगेन किसी ने तो पूछा था कि क्या हम लाइक लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं क्या, येस वी कैन रिवर्स द लिस्ट। सपोज हमने यहाँ पे ले लिया है ऑर्डर लिस्ट, यहाँ पे जाके खाली कीवर्ड आपको यूज करना है लाइक रिवर्स्ड। ओके, और यहाँ पे सपोज मैंने डाल दिया एक li और तो जैसे रिवर्स किया यू कैन सी ऑटोमेटिकली रिवर्स आ गया है, और बाय डिफॉल्ट ये 1 2 3 लेता है। अगर यहाँ पे मैंने जाके टाइप इक्वल टू a कर दिया एंड रिवर्स किया तो ये ABCD जो है वो रिवर्स में क्या करेगा, आपको प्रोवाइड करेगा। ओके, so if you have any question for today's lecture you can ask, so you can solve it in a next lecture. मैम Yes, मैम वो जो अभी आपने बताया वो एप्पल और वगैरह का, तो कोऑर्डिनेट्स कैसे सेट करेंगे मैम आप? कोऑर्डिनेट मतलब सेट नहीं करना है, कोऑर्डिनेट यू